I think age is like just a number. You can achieve anything at any age That's if you good. try hard enough. At seventh grade, you are keen in working with your father, doing the business, knowing the business. At such early stage, you can be a part of this business. Sunil sir, how do you feel? तनिष्क कितनी छोटी उम्र में ऑफिस आता है. हमारे देश में ये प्रथा है कि जब भी कोई बेटा होता है या बेटी होती है तो पहले से माँ बाप डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. आपने तनिष्क के लिए सोचा था कि वो क्या बनेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी. और मैं चाहता हूँ ये लर्न करें कि मैंने भी 12 साल की उम्र में ही काम चालू किया था. I feel like getting successful is easier than staying successful. So, and you also said age is just a number. So what motivates you to be like this? What motivates me is looking at my father. As big as he's grown, What is so different about your dad and what inspires you the most about your father? what inspires me the most is that his hard work has achieved something. My dad has done a lot of hard work. He has Okay. worked throughout his life to reach the status he has reached today. जो भी यहाँ पे रेजिडेंस है, जो भी यहाँ पे सब इमारती उन्होंने 100% अनाउंस किया. ऑल आर हु स्टे ऑल नेशनल्स आर इमारती. सो मेरे को लगता है दुबई के फ्यूचर को कुछ नहीं होने वाला. यहाँ जैसी लाइफ कहीं पे भी नहीं मिलेगी. Correct. आपको फूड में ले लो, कल्चर में ले लो, सेफ्टी में ले लो, सिक्योरिटी में ले लो. हमको आज तक अभी तक एक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आपको मैं बता दूँ, मैंने फिर आपको एक बार फिर अनाउंस करूँगा जी. विद इन 2 ईयर्स जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी अभी है जी. उससे 30-40% अभाव में आप लोग लेंगे और फिर लोग यहाँ पे आएंगे. ऐसी वर्ल्ड में जियोग्राफी, ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह नहीं मिलती. सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल सब कुछ बेस्ट है. Correct. 2003 से मैं इधर आया हूँ. मेरे को आज 26 साल हो गए. मैंने दुबई को देखा है कैसे बढ़ा है और दुबई का आगे बहुत बड़ा विजन है. बहुत विजनरी लीडर्स हैं. Good evening, everybody. Welcome to episode 6 of the Skywing podcast. I know it's been quite a while since we have shot a podcast for you guys, and I apologize for that. There's been quite a delay. But nevertheless, we are back with the Skywing podcast. And today's episode is going to be very special. Why? Because we have a very special guest with us. Along with our CEO, Mr. Sunil Kumar, we have Tanishk. Hi, Tanishk. How are you? I'm good. Thank you. सुनील सर, आज का पॉडकास्ट मैं तनिष्क के साथ शुरू करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Tanishk, it's your first time on the podcast. How are you feeling? I'm feeling good. I'm feeling great. Tanishk, for the people, I want you to introduce yourself. Tell about yourself. कि आप क्या करते हो? Who are you? And why are you in this podcast? So I'm Tanish. I'm 12 years old and Uh-huh. I'm in 7th grade. I'm still in school. Okay. And the reason I'm here is because I've been lately coming to the office and like Uh-huh. looking around at work. Okay. That's a very good thing. You said you are in 7th standard, Yeah, right? 7th grade. 7th grade. That's a good. At 7th grade, you are keen in working with your father, doing the business, knowing the business. What makes you think that at such early stage you can be a part of this business? I think age is like just a number. You can achieve anything at any age That's a if you good try quote. hard enough. That's a good quote. Yes, age is just a number, and you're proving it right as well. So you believe that you can take this business forward with your dad. What are you learning about this business? What are your key things that you're taking away from this business at this point of time? I've learned like it's not that easy to actually like sell properties or like make money in general. Uh-huh. You can see it's like a hard process Okay. and it takes time and like effort. Okay. But when you actually like achieve it, Uh-huh. it feels good. You can see the success. Correct. Sunil sir, how do you feel? तनिष्क कितनी छोटी उम्र में ऑफिस आता है, आपके साथ काम सीखने की उसमें इतनी ख्वाहिश है, इतने अच्छे जज्बात से वो ऑफिस आता है. आपको कैसा लगता है ये देख के? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी. और मैं चाहता हूँ ये लर्न करें कि मैंने भी 12 साल की उम्र में ही काम चालू किया था. अच्छा. मैं चाहता हूँ ये अपनी स्टडी भी करे और अपने काम पे भी ध्यान दे जी. और काम से इसको प्यार होना चाहिए. यस. मेरा एक ही मोटिव है जी. ये और हर फादर का ये मोटिव होता है जी. जी. कि हर इंसान का भी होता है. हम्म. वो हमेशा ये चाहता है कि आदमी उससे
वो हर किसी से सक्सेस हो, वो जो भी उसके आसपास है उससे ज़्यादा सक्सेस हो, Correct. लेकिन खाली वो एक चीज़ चाहता है कि उससे कोई भी ज़्यादा सक्सेस हो, खाली उसका बेटा हो या कोई हो, उससे Correct. ज़्यादा सक्सेस हो, Correct. उसका बेटा हो, भाई हो या भतीजा हो, जो उससे जो उसके Correct. परिवार का मेंबर हो, उससे ज़्यादा सक्सेस हो, तो उसको ज़्यादा खुशी रहती है। Absolutely. जो भी मेरा फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत काम करूँ, बहुत आगे बढ़ूँ, Mm. लेकिन मैं ये चाहूँगा मुझसे भी ज़्यादा मेरा बेटा सक्सेस हो। तो ठीक है, वो तो टाइम भी समय बताएगा कि क्या होता है, Correct. बट आई बिलीव उसको काम करने का शौक है तो काम करना चाहिए, Correct. और लेट्स सी। और जब भी हमारे देश में ये प्रथा है कि जब भी कोई बेटा होता है या बेटी होती है तो पहले से माँ बाप डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपने तनिष्क के लिए सोचा था कि वो क्या बनेगा? एक्चुअली तनिष्क के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा है जी। क्या बनेगा, उसको जो मर्जी है बने। जी। मैं खाली उसको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा कि वो बड़ों का मान सम्मान करे, हम्म। आदर्श करे करेक्ट। और रिस्पेक्ट करे, हाँ। और डोंट से लाई एंड करेक्ट। ऑनेस्टी रखे अपने काम के प्रति, अपने इवन क्या होता है कि जो मैं आज तक सीखा हूँ जी। कि लोग बोलते हैं यार मैं सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक दुकान जाता हूँ, 5 बजे तक दुकान जाता हूँ, करेक्ट। मैं सारा काम करता हूँ, मैंने कंपनी का कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया। लेकिन क्या वहाँ ऑफिस जाके वो या ऑफिस जाता है, शॉप पे जाता है, तो वो काम जो करता है ना, काम चोरी करता है। करेक्ट। मतलब कस्टमर से सही से बात नहीं करना है, या फ़ोन पे टाइम पास करना है, वॉट एवर जो भी करता है। तो लोग बोलते हैं मैं तो ईमानदार हूँ, मैंने खुद कुछ गलत थोड़ी किया। लेकिन मैं वैसा ईमानदार नहीं बनाना चाहता तनिष्क जी। को। मैं जी। चाहता हूँ वो अपने काम पे फोकस हो, काम के प्रति ईमानदारी रखे। करेक्ट। आप कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे को अगर 1000 रुपये मिले तो मैं 1000 के काम करूँ, 2000 का नहीं करूँ। आपको अपने काम से अभाव काम करना पड़ेगा। काम चोरी भी एक तरह की चोरी मानी जाती है। करेक्ट। आप अपने काम से अभाव करोगे, अगर किसी भी कारण से आपका बॉसेस या आपका मैनेजर नहीं देख रहा है, लेकिन वो काम आपको कभी नुकसान नहीं देगा। आपको कुछ सिखा के जाएगा और करेक्ट। फ्यूचर में आपके काम आएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने ये चीज़ करी हुई है मेरी लाइफ में। आज मेरे को मेरे बॉसेस ने कम दिया, ज़्यादा दिया, मैं कभी भी उनकी बुराई नहीं करता। जी। लेकिन क्या मैंने उनके लिए अगर जो भी किया, आज काम में जो भी खुशी के लिए करा, वो अपने लिए ही करता है। जी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करता है। जी। ये मेरा समझो एक लाइफ या मेरी जर्नी का एक आपका एक फंडा है। फंडा जी। है, और जी। उसका जो मेरे को सक्सेस होने में बहुत हेल्प करता है। हेल्प करता है। तनिष्क, what are the things that inspire you about your father when you look at him? And you must be seeing in your friends and their dads and Yeah. everything. What is so different about your dad, and what inspires you the most about your father? What inspires me the most is that his hard work has Mhm. achieved something Okay. that many people try to achieve without doing any hard work. Okay. Like What do you mean by that? I mean, like, my dad has done a lot of hard work. He has Correct. worked throughout his life to reach the status he has reached today. Correct. But like, I feel like some people Mhm. try to achieve that Okay. without doing that as much as work as my father has done. Correct. But do you think the success stays longer for people who don't put in that much hard work, or success stays longer for people who put in that much hard work? As like your father, like you said. I feel like getting successful Mm-hmm. is easier than staying successful. Okay, that's a good quote. Because like, if you get successful, Mm-hmm. it's really easy to go down to. Correct. Staying successful, staying on the top of the list Mm-hmm. is harder than like getting up there. Absolutely, absolutely. So this is what you learn from your father when you see that if he is successful today, he also wants to stay on top. Yes. Correct. Absolutely. Because getting on the top is easy, Mm-hmm. and so is going down. Absolutely. But after getting on the top, staying there is Mhm. the hardest part. Correct. And So I feel like my father has achieved that. absolutely, and that's why you want to get into learn about the business at such early stage, because kids at your age are more focused on playing video games or playing out with friends. I hope you have a lot of friends as well, and Yeah, you of have course. fun at equal amount of time. What do you do for fun, by the way? For fun, I like to game Uh-huh. and like play football. Play football. Who's your favorite footballer? Ronaldo. Ronaldo. Yes, CR7. And when you
you watch a lot of football, so you have a lot of fun. Yeah. Then what makes you motivated towards coming to work with your father? And because like I said, at this age kids like to have a lot of fun. They just like to play around, and they'll think that we have a lot of time, we'll complete our graduation, then we'll get into business. But you want to start at 7th grade. That's pretty early for any kid to think about it. So, and you also said age is just a number. So what motivates you to be like this? What motivates me is looking at my father. As big as he's grown, it's not like he's just, since he started this business, you could say that he's grown higher. Correct. But if you look at his past, if he didn't go through that, he wouldn't be where he is today. If he just started here, Absolutely. he would still be like not as successful as he is because he has experience. He Yes. started at a young age, Yeah. and I want to be like my father. Absolutely. सर ये आपने एक्चुअली पहले भी बोला था पॉडकास्ट में कि ये बात सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि अगर आपके बच्चे बोले कि मैं अपने पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ. एक्चुअली जो भी अपनी ऑडियंस है या जो भी जी. अपन को देखता है, जी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ. जो भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जी. ये स्क्रिप्टेड नहीं है. Absolutely. स्क्रिप्टेड नहीं है. जी. वाई आई एम सेइंग, बिकॉज हमने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करी इसकी. करेक्ट. एटलीस्ट जो भी हमने ब्रॉडकास्ट किया किसी की स्क्रिप्ट नहीं है. जी. जो अभी तनीश ने बोला, जी. इस मेक मी लाइक इमोशनल. सो अच्छी बात है. जी. वो मेरे जैसा बनना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरे से भी अच्छा बने. जी. लर्न इट. मैं भी उसको बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें वो मेरे से सीखे. कुछ चीज़ें मेरे में भी ख़राब होंगी, वो उनको वहीं छोड़े जी. और लोगों से सीखे. इसकी तनिष्क की कुछ गुड हैबिट्स भी हैं, बैड हैबिट्स भी हैं. जी. ये हर बच्चे में होता है, हर इसका बच्चे में. एज है. लेकिन क्या है, मैं चाहता हूँ जिसको जिस चीज़ से प्यार हो ना उसको करना चाहिए. इसको प्यार है काम करने के लिए. Correct. इसने सबसे यंगेस्ट एज में रियलटेल का काम किया. जी. एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, जी. उस पर हमको बहुत सी लीड्स भी मिली. बहुत अच्छा काम किया इसने. और मुझे पता है कुछ ना कुछ कर लेगा. मैं इसको ये मेरी जो प्लानिंग है फ्यूचर की, मैं कभी भी कोई चीज़ क्या बच्चों से या मेरे परिवार से छुपाता नहीं हूँ. करेक्ट. मेरा यही प्लानिंग है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एम्पायर. हाँ, मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि ये एम्पायर खुद का खुद खड़ा कर देगा. अपना खुद. मेरी है कि मेरा जो भी है, मेरी क्या है कि बच्चों को क्या देना चाहिए. जी. जी. आज के टाइम में तो बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे संस्कार दो, उनको इतना काबिल बना दो कि वो खुद का एम्पायर खुद खड़ा करे. करेक्ट. अगर मैंने इसको बना के दे दिया तो वो इस पे इसकी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई. इससे कुछ खुद बनाया, जी. उसके लिए मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ. इसका ये नहीं कि मेरे ऑफिस में अभी आएगा और मेरे को काम करेगा, मेरे को कुछ अर्न कर देगा. मेरे को इसकी अर्निंग से कुछ नहीं चाहिए. जी. मुझे एक चीज़ चाहिए कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हुए, खुद काम करे, खुद समझे क्या है, कैसे है, ऑब्जर्व करे मार्केट को, समझे. हाँ, इसके बैक में मैं खड़ा हूँ. इसकी सोल बन के खड़ा रहूँगा, इसकी परछाई बन के खड़ा रहूँगा. जी. लेकिन काम तो उसको खुद को ही करना पड़ेगा. हाँ. इसको रेडीमेड बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा. करेक्ट. मेरी बेटी भी है. जी. नेक्स्ट अगर 1-2 साल की हो जाएगी उसको भी ब्रॉडकास्ट से 5 साल में लेके आऊँगा. उसका भी कल 14 अप्रैल को बर्थडे है. जी. वो बहुत प्यारी है और वो अपने भाई से ही बहुत झगड़ा करती है. जी. बट वही है ना कि इवन उसके लिए भी या इसके लिए और इवन मेरे भतीजों के लिए जो मेरे साथ ही हैं या जो भी है, हम उनको इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपने पर पे खुद खड़े हुए. हाँ, जो भी उनके एजुकेशन में हेल्प है, जो भी उनको कहीं बाहर पढ़ने जाना है या कुछ समझना है, हम एक ग्राउंड बना के दे देंगे. करेक्ट. प्ले तो उनको ही करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. कि आप जिम तक तो लेके जा सकते हैं, बट डंबल तो उनको खुद ही को उठानी है बॉडी बनाने के लिए. So that's an absolute fact. And do you agree with that, Tanishq? Are you? Yeah, of course. Because when people look at you, they think that you're born with a golden spoon because your father is a successful entrepreneur already. But when because that's the perception, right, amongst people. But Yeah. like when your father says that I'm not going to give him my empire, but he will teach you how to build one. So what do you think that puts you in a position? Like, how do you feel motivated about that? I don't feel like my position has changed at all. Like my opinion hasn't changed. Why that? I know what's gonna happen. He's gonna teach me, Yes. but I have to build my own empire. Like Absolutely. I have to start my own stuff. Absolutely.
So, but I hope that your focus is not shifted, like you're completely focused, because sir has also mentioned that you need to love your job. So, is this what you love, being an entrepreneur? Is course. this what you want to do in life? Yes, I want to be a businessman. I want to grow stuff. Okay. And when you think about real estate, what do you think is the most difficult or easy thing about being in the real estate industry? First of all, the hardest thing I feel like Mm-hmm. is finding a deal. Okay. Closing, I'll say it's hard too, but finding one is harder. Okay. Finding a client that you know that's gonna buy it. Okay. You know he's gonna buy it, so you can treat him good. Yeah. If you see a bad client at first, Uh-huh. which I think is like most of the time, Mm-hmm. finding one is really hard, in my opinion. Correct. And what do you think is the easiest part about the real estate industry? I would say there's like, it's not easy to be one. Hmm. It's hard. Okay. Like, generally, it's hard to be a real estate Correct. broker and like Uh-huh. any. Uh-huh. But the easiest part, like, normally I would say, is like the ending of a deal. When you know they're gonna buy it, they're really interested. Yeah. Yeah. So you know that this is a sure shot client that's going to close a deal. Yeah. So yeah, that then you can sell. Then it's Yeah. over. You know, it's as a easy. salesman, you need to be pretty good with dealing with people. You know, Yeah. did you learn that skill from your father? How to be Yeah, you have pretty- to be good with people. pretty good with people? Because if you've seen him dealing with people, you know how good he is with dealing with people, talking to people. Yeah. So did you pick up that skill from your father? Are you confident that you can be a good salesman in the future? Of course. And not even the future. Might be in the next 5 years. Yeah. You never know. In the near future. Yeah, near future. In the near future. सर ये जो आपकी जो स्किल है जो आप जनरेशन से आती जाए, जैसे आपने पहले पॉडकास्ट में भी बताया था कि आपके फादर भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तनिष्क को भी इतना फोकस है बिजनेस करने का और ही उसको इतना प्यार है बिजनेस से, तो ये आपके फैमिली में कैसे है सर? लाइक योर एंटायर फैमिली इज एंटरप्रेन्योर्स और कोई काम में इंटरेस्टेड नहीं है या सबको सक्सेसफुल ही बनना है बिजनेस लाइन में? मैं इसका रिप्लाई दूंगा आपको। सबसे पहले मैं इसका तनिष्क का रिप्लाई दूं जो इसने पूछा। जी। इसने जो बताया आपको कि ये हार्डर है जी। रियल एस्टेट में ये। जी। सो इसका एक रिप्लाई दूंगा मैं इसको जी। दैट कि नथिंग इज हार्डर। हम्म। कोई चीज़ भी हार्ड नहीं है। करेक्ट। सारा के माइंडसेट का है। आपका माइंडसेट क्या है? जी। आपको कोई भी चीज़ आज के टाइम में कोई भी चीज़ हार्ड और इजी है ही नहीं। करेक्ट। आपका माइंडसेट आपको करना क्या है और अपने माइंडसेट बना लिया आपने को आपको जो चीज़ करनी है। सो आपको बोलते ना जैसे हमारे रिलीजन बोलते हैं कि ऊपर आके खुद देता है। Correct. आप अपने काम के प्रति 100% दो, 1000% यू विल गेट द सक्सेस। ऊपर वाले ने आपके लिए सब कुछ रखा। आपको अपने हार्ड वर्क पे कोई कमी नहीं करनी। आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे पहुंचना है, चीज़ें करनी, दैट इज़ योर वर्क। और इजीली सब चीज़ें होती हैं। आप ऑनेस्ट रहो, अपने काम के प्रति ईमानदार हो, जैसे मैंने पहले बोला था, और 100% यू विल बी सक्सेस। ओके, नाउ सेकंड थिंग व्हिच यू आर आस्किंग टू मी दैट जैसे मेरे फादर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, मैं भी था। तो बोल सकते हैं हम पाकिस्तान से आए थे। जो डिवाइडेशन हुआ था जी, जब हम पार्टीशन के बाद हम सिंधी हैं। अच्छा। ये एक ऐसी जो बहुत कास्ट है, जो कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने अपने घर बार गोल्ड सब छोड़ के वहाँ से निकले थे, जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट हुए थे। जी। हम अजमेर आए थे 1947 में। हमारे दादा वादा आए थे। हमारे पास कुछ नहीं था, जीरो थे। और कभी भी सिंधी कभी भीख नहीं मांगता है, वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं जानता, बिजनेस करते हैं। आपका रिकॉर्ड होगा बहुत कम, हमारी कम्युनिटी का परसेंटेज इंडिया में बहुत कम है, बट दे आर वेरी सक्सेस। अच्छा। और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और जितने बहुत भी सक्सेस हैं, they will make sure that they will be businessmen। बिजनेसमैन नहीं, मेक श्योर वो बिजनेस करेंगे, छोटा बिजनेस करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन कभी वो भीख नहीं मांगेंगे। तो वो जो चीज़ कर रहे हैं ये वो बहुत जोरदार, और उनका काम करने का जो तरीका है सिंधियों का, बहुत अलग लेवल पे काम करते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्कर
और बहुत समझदार से काम करते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। जी, तो जैसे मेरे दादा परदादा से हमको आती आ रही है वही चीज़ हमारे बच्चों में है। एब्सोल्युटली। हम्म, तो ये मतलब ये बिकॉज़ वो आपकी कम्युनिटी में ही ये कल्चर है कि सब लोग एंटरप्रेन्योर्स ही बनेंगे एंड एवरीबॉडी वुड ट्राई टू बिकम ऐसा कम्युनिटी में सक्सेसफुल। नहीं है बट वो कभी भी समझो गलत काम में नहीं होते हैं। जी, वो जी, काम करना जानते हैं, अपने पेट बांध डालते हैं। अगर अगर हमारी कम्युनिटी कोई गरीब भी होगा ना तो वो जी, भीख नहीं मांगता है या कुछ, वो सुबह से रात तक काम करके अपने घर वालों का पेट भर देता है। करेक्ट, वो मतलब माइंडसेट क्लियर है और करेक्ट, ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में बिजनेसमैन ही है। एब्सोल्युटली। हम्म, तो ये यस सर, यू आर वेरी ट्रू व्हेन यू सेड कि ये सारा माइंडसेट का खेल है। हम्म, जब आप ये करंट सिचुएशन में भी देख रहे हैं और व्हाट वी आर इन राइट नाउ इन दुबई, माइंडसेट कितना इफेक्ट करता है कि लोग, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले भी बोलते थे कि दुबई को तुम बड़ा सेफ बोलते थे, सेफ बोलते थे, देखो अब क्या हुआ। न्यूज़ में, इंटरनेट पे आपको ऐसा बहुत सुनने मिलता आपको है। मैं एक चीज़ का रिप्लाई दूं। जी, दुबई सेफ है, दुबई सेफ था और दुबई सेफ रहेगा। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, जब भी किसी कंट्री में वॉर होती है जी, या कुछ होता है, पहली बात दुबई में इंटर वॉर तो है नहीं। हाँ, ये किसी थर्ड पार्टी से हमको समझो एक थर्ड पार्टी का वो एक्सपोज किया हुआ है, मतलब हुँ, उन्होंने हमारे ऊपर थोपा है। जी, जी, ये मत थोपा, दुबई में कुछ नहीं। जब ये कंडीशन में दुबई में होता है या ये चीज़ें दुबई में हो रही हैं, तो क्या होता है, इंटरली प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है। जैसे हमने अफ्रीका में भी देखा, जब आपको इंटरली बाहर से कोई लोग आते हैं तो इंटरली ह्यूमन राइट्स ये वो चीज़ें, तो दुबई बिल्कुल सेफ है। करेक्ट, एक चीज़ है, मैंने लिटरली देखा है, अगर जी, कोई मिसाइल्स या कुछ आया है, उसको इंटरसेप्ट किया हुआ है, करेक्ट, ऊपर इंस्टेबली नीचे लोग आराम से ट्रैफिक चल रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत यस, बेसिक। एक दिन या, आई से इवन 1 सेकंड यहाँ पे ट्रैफिक बंद नहीं हुआ, लाइट नहीं हाँ, गई, चीज़ें नहीं हुई, ऐसा नहीं है कोई चीज़ मिली नहीं, खाने में करेक्ट, सब चीज़ें मिल रही है, टाइमली मिल रही है, सब जी, कुछ हो रहा है, जी, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, बिज़नेस अप एंड डाउन्स होते थे। दुबई में एक करेक्शन आना था, रियल वो करेक्शन आ गया। जी, आपको मैं बताऊँ, दुबई के अंदर लोग फ्यूचर में 101% इससे ज़्यादा तेज़ी देखेंगे रियल एस्टेट में। आई गिव माय वर्ड्स, विदिन 2 टू 3 इयर्स जी, मार्केट कहीं है, इन्होंने अपने 40-50 साल की मेहनत है, ये कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पे हमने ये देखा है, जैसे ऊपर से कोई मिसाइल्स आए या जी, ड्रोन अटैक हुआ, उसको इंटरसेप्ट किया और नीचे ट्रैफिक जा रहा है। जी, यहाँ पे एक दिन भी लाइट बंद नहीं हुई, किसी को खाने की तकलीफ नहीं, कोई फूड की प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सी चीज़ें बहुत बेसिक चल रही है। करेक्ट, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, इन्होंने 40 इयर्स मेहनत करी है। एब्सोल्युटली, 40 इयर्स की मेहनत एक दिन के अंदर ये ख़त्म नहीं होने वाली, एक दिन, 1 महीने में ख़त्म नहीं। यहाँ के जो शेख्स हैं, जो यहाँ के विज़नरी लीडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा विज़न्स है। उन्होंने लिटरली अपने सब बॉडीज़ पे, जो भी यहाँ पे रेज़िडेंट्स जी, है, जो भी यहाँ पे रहे, सब इमाराती उन्होंने 100% अनाउंस किया, ऑल आर हू स्टे ऑल नेशनल्स आर इमाराती। सो मेरे को लगता है दुबई के फ्यूचर को कुछ नहीं होने वाला है। करेक्ट, यहाँ जैसी लग्ज़री लाइफ़, आप, मैंने वर्ल्ड बहुत ट्रैवल किया है, मैंने जी, यूएस भी ट्रैवल किया है, मैंने यूरोप भी किया है, मैंने सब जगह ट्रैवल किया है, लेकिन यहाँ जैसी पोज़ीशन, जी, यहाँ जैसी लाइफ़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी करेक्ट, आपको। फूड में ले लो, कल्चर में ले लो, सेफ्टी में ले लो, सिक्योरिटी में ले लो, हमको आज तक अभी तक एक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जी। और सर आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ पे अगर कोई वॉर की सिचुएशन है तो लोग ऐसे ही सुपरमार्केट्स में घुस के या चीजें देख लूट मैंने लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिटरली देखा है, अफ्रीका में जी, ये चीज़ें हुई हैं, सब जो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सेफ है। लंदन में तो फुटपाथ पे लाइनें लगी हुई है सर कि फोन आके कोई छीन के भी ऐसा चला तो नहीं जाता है, है, ऐसा वही भी वही नहीं है। यूके तो में आप देखो, जी, वहाँ रातों रात आपके आप एक्सपेंसिव वॉच नहीं पहन सकते, कुछ नहीं, आपको रातों रात तो कोई भी हो जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, जी, नहीं कोई जी, चोरी हुई, नहीं कोई चकारी हुई, नहीं कुछ हुआ। आप समझो ना कि आप कैसे डिफाइन करते हो? और ये प्रॉब्लम जो भी हाँ, इनके ऊपर, जो भी व्हाटएवर जो भी हुआ है, जी, जो जी, भी अटैक्स हुए हैं, जो भी हुआ है, कुछ जी, इनका इंटरनली मैटर नहीं था। इंटरनली करेक्ट, ये भी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की गवर्नमेंट लाइक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ। यहाँ के जो आई थिंक ये जो लीडरशिप की जो विजन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो लोगों को बहुत हिम्मत देती है। आपको मैं बता दूँ, मैंने फिर आपको एक बार फिर अनाउंस करूँगा, जी, विदिन 2 इयर्स जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी अभी है, जी, उससे 30-40% अबव में आप लोग लेंगे और फिर लोग यहाँ पे आएँगे। ऐसी वर्ल्ड में जियोग्राफी, ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह नहीं मिलती। सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल सब कुछ बेस्ट है। करेक्ट, हम इधर बैठे हैं, हम जो भी हम मेरे को ऑलमोस्ट 2003 से मैं इधर आया हूँ, जी, मेरे को आज जी, 26 साल हो गए। जी, मैंने दुबई को देखा है, कैसे बढ़ा है। हाँ, और दुबई का आगे बहुत बड़ा विज़न है, बहुत विज़नरी लीडर्स है।
इनके जो प्लान्स है, मास्टर है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, Correct. कहीं पे नहीं मिलेगा। आज भी Absolutely. 232 मिलियन की डील हुई है। आप DLD की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डील्स हो रही हैं। जी। ऐसे नहीं है लोगों आँख बंद करके। क्या होता है कि दुबई बहुत फ्लेक्सिबल हो गया था। जो छोटे बायर्स है, छोटे कलर, वो थोड़े पैनिक कर गए कस्टमर, जी, जी। लेकिन वो भी समय आएगा तो समझ जाएंगे। Absolutely. आज समझो ना, हम अजमेर से हैं, हम्म, मेरे 2 फ्रेंड्स ने भी बहुत सी प्रॉपर्टी ली है। मेरे जो इंडियन रुपीज़ 4 करोड़ 4 जिस टाइम ले रहे थे, उस टाइम भाई अभी ली, बोले 5 में बिक जाएगी, 5.5 में बिकी। जी। आज वही प्रॉपर्टी 4.5 में भी नहीं बिक रही। 2-2 साल उधर भी हो गए ना। करेक्ट, हाँ। तो हाँ। 2 साल में तो अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ, appreciation- एग्जांपल, मैंने एक जी, होटल ली थी अजमेर में, जी, व्हिच इज़ अराउंड, अभी मेरे को कॉस्ट पड़ी है 530 और 6 करोड़ पड़ेगी, जी, और वो सेलिंग 8 और 9 करोड़ रुपीज़ है। जी। अब 30% कैपिटल के पीछे है। तीसरा साल है, चौथा साल। अगर मैं उसको सेल करने जाता हूँ तो मेरा करेंसी की वाट लगी ना। मैंने 72 73 में ट्रांसफर किया, 95 22, तो अब तो 22-25% मेरा हो जाता। तो ये चीज़ें लोग नहीं रहा स्टेबिलिटी की तरह। मैं बोल रहा हूँ, वॉर की सिचुएशन में यहाँ से पैसे नहीं निकलते हैं। जी, पैसे नहीं निकलते किसी भी कंट्री में। आप बहुत जगह वॉर होती है, यूक्रेन में जब वॉर हुई थी, वहाँ से पैसे, बैंकों ने पैसे भेजना बंद कर दिए थे। Correct. आज भी यहाँ पे बैंक भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी इजीली। Correct. तो आप समझो ना, आप कहाँ लेके जाओगे इस कंट्री को? Absolutely. I think the sky is the limit is what they say for you. बहुत, And, आपको मैं बता दूं, जी, ऐसी लवली कंट्री, ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। absolutely. यहाँ पे आप 2000 दरम जो सैलरी है, उससे पूछोगे जाना इंडिया, वो मना कर देगा। हाँ, 2000 दरम की पगार वाला बंदा बोला मेरे को यहाँ पे चाहिए, इवन वो बैड स्टूडेंट रहता, उसको इतना प्यार है दुबई से। जी, और यहाँ पे लोगों ने बहुत पैसे बनाए। लोगों का दूसरा घर नहीं है, क्या पता फ्यूचर में ये पहला घर हो जावे। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी इज absolutely, देयर, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी इज देयर, possibility है। बट आई जी, कैन नॉट से समथिंग, बट देयर इज अ absolutely. पॉसिबिलिटी जी, कि लोगों का दूसरा नहीं, पहला घर ही दुबई हो जाए। पहला करे दुबई हो जाए। उनका प्लान है। जी, बहुत विजनरी लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला। जी, सेफ्टी सिक्योरिटी मामले, इन्होंने ये भी प्लान कर दिया कि हमारे जिनके पास गोल्डन वीजा, उनको भी एक्टिवेट करेंगे हम। करेक्ट। तो बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग और प्रोसीजर में है बहुत सर, बहुत पाइपलाइन में है। हाँ। क्योंकि जैसा कि हमने इंटरनेट पे भी देखा है कि दुबई हैज़ विजन फॉर 2040। बहुत सारे अभी मॉन्यूमेंट्स आने वाले हैं, फ्लाई टैक्सी है, मेट्रोस के बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे। सो लोग अगर इस चीज़ से पैनिक हो गए एंड दे स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दुबई, आई थिंक दैट दे आर मेकिंग अ रॉन्ग मूव, इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। श्योर। एंड एक और चीज़, जी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो, जी, मेरा बेटा 2020 में इधर मैंने उसको शिफ्ट किया। कोविड जी, पहले ये चाइना था, जी, और चाइना से इधर शिफ्ट। आप उससे पूछो वो क्या दुबई छोड़ के जाना चाहता है, उससे पूछो दुबई में उसको क्या लगता है, और आगे फ्यूचर वो कहाँ रहना चाहता है। करेक्ट, वो इंडिया भी देख के आया, चाइना भी देख लिया, दुबई भी देख लिया, उसको क्या समझ में आता है। और उससे बहुत कंट्रियाँ भी घूमी है, बहुत। उसने मकाओ घूमा है, बाली घूमा है, सब जगह घूमा है। उससे पूछो वो कहाँ रहना चाहता है और क्यों रहना चाहता है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ लो। What do you say, Tanishq? What is your favorite place amongst all the places that you've been? To live, To live? Dubai. Yes, Dubai. What do you like about Dubai than China? The lifestyle The lifestyle. and the education too. Like Uh-huh. it changed a lot, but the education, in my opinion, here is way better. Okay. In my opinion, some Uh-huh. people would disagree, but Yeah, yeah. I think the education is here is way better than what I before had in China. Correct. And the living lifestyle itself, Okay. like the environment too, Uh-huh. You feel more safer and safer too. Yeah. yeah. So I think that's we एक ही क्वालिटी है जो दुबई को दुनिया से अलग करती है। दुबई सेफ था, जी। है और रहेगा। आज भी रात को आप 2 बजे नीचे निकल जाओ, आपके बच्चे हैं, लड़की है, कोई भी है, बहुत जी। सेफ है। इतनी मगजमारी, इतनी पंगे होने के बावजूद भी दुबई में ऐसा कोई नहीं है। मेरी फैमिली इधर थी, हम अकेले थे, मैं बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, तो भी हम आराम से रहते, हमको ये टेंशन नहीं थी। Correct. अगर सेम थिंग कहीं पे भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो लाइट चली जाती, रात को लाइट नहीं आती, चीज़ें नहीं आती, बहुत जगह हुआ है ऐसा। जी, जी। मैं पर्टिकुलर किसी का ना, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है आपको। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को अभी चाहिए नहीं मिल रही, ऐसा कोई नहीं है। Absolutely. Absolutely. और यहाँ के लोगों का विजन, सिक्योरिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेट्स डिसाइड द पीपल, क्योंकि जो लोग रहते ना इधर, उनको सब पता है क्या हो रहा है, Correct. जो लोग एक्चुअली क्या है। हाँ, जो अफवाहों से ज्यादा तजुर्बा आपको बहुत चीजें सिखा के देता है। आपको क्या है कि अपन कभी-कभी क्या जो देखते हैं वो हर चीज़ सच्ची नहीं होती। जी, जी। आई थिंक ये नजर और नजरिए का फर्क है। नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। जी, दुबई में बोलते हैं ना
खाली एक छोटी मोटी नज़र लगी, वो नज़र भी उतर जाए, नज़र भी ज़्यादा रुकती नहीं है, करेक्ट, तो वही है और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक इसी नोट पे सर मैं ये पॉडकास्ट आज एंड मैं करना आपको चाहूँगा। पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं जी। आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। जी जी मैं एज ए सेल्स से मैं एक और दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। हाँ एक शोभा की कम्युनिटी आ रही है जी, आबू धाबी में, अबू धाबी में सर। हाँ बहुत प्यारी है, शोभा सिटी के नाम से। हाँ वो प्रोजेक्ट जो है पहले बहुत महंगा लेके आ रहे थे, इनका बहुत प्लान था ओके, अराउंड वहाँ पे 1 BHK 1.3 से और 2 BHK 2.4 मिलियन से विलास है, विलास ने बहुत प्यारी कम्युनिटी आ रही है। अच्छा। वहाँ पर डिज्नीलैंड के पास में कम्युनिटी है, ये जो यास आइलैंड के पास यास इन्होंने आइलैंड जो बहुत है, अनाउंस की है। दुबई से सिर्फ 50 मिनट्स है, 45 जी मिनट्स है। जी जी एयरपोर्ट जो अपना एयरपोर्ट है जी अबू धाबी एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट है। जी ये कम्युनिटी पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है जी तो आग बंद करो। 2% DLD है अबू धाबी में। ऐसी कम्युनिटी किसी भी नहीं, बहुत से दूसरे डेवलपर लेके आए, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। शोभा विल बी वन बिगेस्ट डेवलपर इन द अबू धाबी। करेक्ट बहुत प्यारी कम्युनिटी आ रही है और बहुत अच्छी कम्युनिटी आ रही है और दे आर डेवलपिंग। अभी चांस है 1.3 मिलियन में वन बेडरूम और 2.4 में 2 बेडरूम। करेक्ट। ये आगे चल के ये चीज़ आपको डाउनटाउन में आज 1 BHK 5 मिलियन है। सो देयर इज अ वेरी बिग चांस इट्स अ टू बिग डिफरेंस। वेरी बिग। और शोभा ने लोगों के पैसे हैंड ओवर तक 70 to 80% कैपिटल अप्रिसिएशन दिया है। Correct. मैं नहीं बोलता हूँ 70 to 80%, बट आई हैव द वर्ड्स ऑलमोस्ट 40 to 50%, 100% कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ। अबू धाबी में लैंड्स बहुत कम है, जी। बहुत फ्री होल्ड लैंड्स बहुत कम है। जी यस आइलैंड में पूरा टूरिस्ट का जी डेस्टिनेशन है वो destination पूरा, है हाँ और डिज्नीलैंड के पास में 5 मिनट का डिज्नीलैंड है। तो Correct. आप समझो आगे चल के कम्युनिटी कहाँ जाने वाली है। एब्सोल्युटली एंड डिज्नीलैंड का काम चालू हो चुका है। जी। 29 दिसंबर का हैंड ओवर है। पेमेंट प्लान 60-40 29 दिसंबर हैंड ओवर मिल जाएगा हाँ, सर। 60-40 हैंड ओवर है। वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है। यू गाइज कैन वर्क ऑन इट। Yes. अगर किसी को इंटरेस्ट है चेक इट। और एब्सोल्युटली हमारे जो टेनेंट पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे ऑफिस के जी। जो सेल्स पर्सन है, आपको कोऑर्डिनेट करेंगे अगर आपको कुछ भी चाहिए तो। Definitely, sir. Thank you so much for this helpful insight about the Shobha community. I'm sure everybody is very excited for this upcoming community. इस आबू धाबी, हाँ जी, because it's right next to Yas Island और Disneyland के एकदम पास में है, तो अबू धाबी कनेक्टिविटी भी है, तो I think it's a good selling hot cake which will be, giving good capital appreciation in the future for everybody. Thank you, Tanishq, for being on the podcast today. It was a lot for me, it was a lot of learning from you, as somebody who's joining the business at such a young age. Because when I was your age, I never thought about business. It was the only thing that we used to think about is climbing trees and jumping from there. So, it's a lot of learning from you. So you've inspired me a lot today. So thank you so much for that. Thank you, Sunil sir, for a wonderful podcast today. Okay. And everybody, please do subscribe to our channel. We will be bringing such wonderful podcasts for you in the future as well. Thank you for watching us and thank you for all your support. Thank you.